Hello. This call is now being recorded. Okay. So today we have to see about the next numerical. So next numerical is find poles and zeros. Poles and zero. Poles and zeros for the network. For the network shown. For the network shown and and plot them on S plane. S plane. This is the figure. 2 ohm, 1 by 2H Henry, and 1 farad. This is Z of S. This is Z of S. This is the network, and we have to find the first Z of S. Z of S here. So we have to first convert this uh, value in the Laplace transform, means Laplace form. So for capacitor, 1 by F means 1 farad. This is the Laplace transform of capacitor is 1 by Cs. 1 by Cs. So what is the value of this C? C is 1 farad. So 1 by 1 into S means S. 1 by S. We have to first convert this circuit in the Laplace form. अपने को क्या करना है, ये सर्किट को लाप्लास फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो कैपेसिटर का क्या होता है लाप्लास फॉर्म? 1 बाय सी एस. 1 बाय सी एस. तो कैपेसिटर की सी की वैल्यू क्या है? 1. सो 1 अपॉन 1 इंटू एस कितना होता है? 1 बाय एस. 1 बाय एस. देन एल. एल कितना है? 1 बाय 2 हेनरी. 1 बाय 2 हेनरी. इसका क्या होता है? एल एस. क्या होता है? एल एस. तो ये एल एस हो गया. तो एल एस इज एल की वैल्यू क्या है? 1 बाय 2. सो 1 बाय 2 इंटू एस मीन्स एस बाय 2. एस बाय 2. रेजिस्टेंस का सेम रहता है. रेजिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है. आर इज इक्वल टू 2. आर इज इक्वल टू 2. तो जब कभी आप करना है तो कैपेसिटर का क्या होगा? 1 अपॉन सी एस और इसका एल एस. इसका क्या होता है? एल एस. तो इसका होगा आपका एल एस और आर का आर ही रहेगा. देन फिर से हमें क्या निकालना है? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला सर्किट. ये 1 बाय एस, ये 2 और एस बाय 2. एस बाय
2. This is your z of s. This is your z of s. Okay. So अभी z of s क्या होगा? What is the z of s? ये दोनों क्या में है? पैरेलल में. These two are in parallel and then series with 1 by s. These two are parallel and then in series. So z of s is equal to 2 parallel with s by 2 plus 1 by s plus 1 by s. So 2 parallel with s by 2 means 2 into s by 2 divided by 2 plus s by 2 plus 1 by s. So 2 cancel, then s here and here 2 4 plus s, 4 plus s, so plus 1 by s. So s divided by 4 plus s by 2 plus 1 by s. So s into 2 upon 4 plus s and then 1 by s. So 2s upon s plus 4. 2s upon s plus 4 upon s. So now again we have to simplify this. So s into s plus 4 into now 2 into s square plus s plus 4, s plus 4. So this is your z of s. Z of s is equal to 2s square plus s plus 4 upon s into s plus 4. This is your z of s. This is your z of s. Okay. And your z of s is equal to p of s upon q of s. P of s upon q of s. So we have to find zeros. So zeros zeros of a transfer function, we have to equate p of s is equal to 0. P of s is equal to 0. So 2s square plus s plus 4 is equal to 0. As 2s square plus s plus 4 is equal to 0. So how we find the roots? With the help of formula. So here a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 4. So by formula roots are s is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by twice a. So minus b means minus 1 plus minus under root b square means 1 minus 4 into 2 into 4 divided by 2 into 2. So minus 1 plus minus under root of 1 minus 32. So divided by 4. So minus 1 plus minus minus 31 divided by 4. So s is equal to minus 1 by 4 plus minus under root minus 31 by 4. Give the value. Tell me the value of these roots. What is the value of s? Tell me the value. Minus 1 by 4 plus minus under root minus 31 by 4. Tell me the value.
Tell me the value of roots. Minus 20, minus 0.25 plus or minus J 1.39. J 1.39. Means here two roots are available. 0.25 plus J 1.39 and 0.25 minus J 1.39. So next we have to find the poles. We have to find the poles. For poles of a transfer function, we have to equate Q of S is equal to 0. We have to equate Q of S is equal to 0. Then what is your Q of S? Q of S is equal to Q of S is nothing but denominator. What is the denominator? S into S plus 4. S into S plus 4 is equal to 0. S into S plus 4 is equal to 0. Therefore, S is equal to 0 and S plus 4 is equal to 0. So, S is equal to 0 and S is equal to minus 4. S is equal to 0 and S is equal to minus 4. So your zeros are, there are how many zeros are there? Here two zeros are there. So Z1 and Z2 is nothing but your 0. Minus 0.25 plus J 1.39 and minus 0.25 minus J 1.39, and poles are P1 and P2. So P1 is 0 and P2 is minus 4. P2 is minus 4. So we have to draw the S plane. We have to draw the S plane and draw the pole 0 diagram. So here 1, 2, and here 1 and 2. Here also, sorry, here J1 and J2, and here minus J1 and minus J2, and then here minus 1, minus 2, minus 1 and minus 2, minus 2, minus 3 and minus 4 here. So first we have to find the poles. Here 0 and minus 4. So here we have to draw the poles. We have to node the pole by cross. Node the pole by cross. And 0 is and zeros is 0.25. 0.25 means here 0.25 and minus J 1.39 here. Means here 1 0 is there and another here. Okay. 2 zeros, 2 poles. 2 zeros and 2 poles. Understand, all of you? Understood? Understood or not? Everyone understood? This type of question is also asked in the university exam. Okay, these are the pole 0 numericals. Pole 0 plots in pole 0 plot, there are these type of numericals are there. Okay. Now we have to learn about the driving point function and transfer function.
Now we study about the driving point function and transfer function. So you have to first write the एक फ्रेश पेज पे लिखो what are the necessary condition, what are the necessary condition for driving point function, what are the necessary condition for driving point function. What are the necessary condition for a driving point function? What are the necessary condition for driving point function? ओके हाँ उसमें लिखो आफ्टर, हाँ इन ब्रैकेट में लिखना, इन ब्रैकेट आफ्टर कैंसलिंग, in bracket after cancelling common factor, after cancelling common factor in p of s, common factor in p of s and q of s, after cancelling the common factor in p of s and q of s, after cancelling common factor in p of s and q of s, p of s and q of s. तो नीचे लिखो द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन with common factor, with common factor in p of s, in p of s and q of s, and q of s cancelled, q of s cancelled r, cancelled r, cancelled r. First point, coefficient in expression, coefficient in expression in bracket polynomials, in bracket polynomials of p of s, of p of s and q of s, p of s and q of s when n of s is equal to, when n of s is equal to p of s by q of s, p of s by q of s, p of s by q of s must be real and positive, must be real and positive, must be real and positive. So first point is coefficient in expression in bracket polynomials of p of s and q of s, q of s when n of s is equal to p of s by q of s must be real and positive, must be real and positive. Second point, for imaginary or complex poles, for imaginary or complex poles and zeros, complex poles and zeros, they must be conjugate, they must be conjugate, they must be conjugate.
they must be conjugate. Third point. First, रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स. हाँ, थर्ड पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट लिखना. थर्ड पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट, रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरोज, द रियल पार्ट्स ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरोज must be zero or negative, must be zero or negative, must be zero or negative. The real part of all poles and zeros must be zero or negative, must be zero or negative. Second point, if second point, if real part is zero, if real part is zero, if real part is zero, then that pole or zero, then that pole or zero must be simple, then that pole or zero must be simple or distinct, must be simple or distinct, must be simple or distinct, must be simple or distinct. Fourth point, the polynomial of P of S, the polynomial of P of S and Q of S, the polynomial of P of S and Q of S should not have any term, should not have any term missing between, any term missing between highest and lowest degree term, highest and lowest degree term, highest and lowest degree term, with the expectation, with the expectation that, with the expectation, with the exception, with the exception, with the exception that either or even, either or even or all odd terms are missing, either or even or all odds term are missing, odd terms are missing, either all even or all odd terms are missing, with the exception that either all even or all odd terms are missing. Fifth point, the degree of P of S, the degree of P of S and Q of S, the degree of P of S and Q of S may have a difference of, may have a difference of one or no difference. The degree of P of S and Q of S may have a difference of, may have a difference of one or no difference, one or no difference. 6th point, the terms of lowest degree, the terms of lowest degree, the terms of lowest degree in P of S and Q of S,
the terms of lowest degree in P of S and Q of S can be differ in degree, can be differ in degree, can be differ in degree by one or no more, by one and no more, by one and no more. हाँ, हेलो, हाँ विवेक कटरे, हेलो हाँ हेलो, सर, वो फोर्थ वाला पॉइंट रिपीट कीजिए थोड़ा सा। फोर्थ वाला पॉइंट, हाँ सर, वो द पॉलिनोमियल वाला। the polynomial of P of S and Q of S, the polynomial of P of S and Q of S should not have any term, should not have any term missing between, missing between, missing between highest and lowest degree, missing between highest and lowest degree term, with the exception that, with the exception that either all even, either all even or all odd terms are missing, either all even or all odd term are missing, term are missing. फिफ्थ पॉइंट, अब किसी वजह 6 पॉइंट चाहिए ना एक, हाँ 6 पॉइंट इज द टर्म ऑफ लोवेस्ट डिग्री, the term of lowest degree in P of S and Q of S can be differ in degree, can be differ in degree by one and no more, by one and no more, by one and no more. Okay. थर्ड का वन, थर्ड का वन देखो क्या है, रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स, रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरोज must be zero or negative, 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 must be zero or negative. हाँ विवेक कटरे, हेलो, हेलो, हाँ विवेक, हेलो, हेलो विवेक, हेलो, हाँ राहुल तिजारे, यस सर। लिखा तूने पूरा, हाँ लिखा क्या बोला, हाँ सर। हाँ, पढ़, कौन सा पॉइंट?
पूरा पॉइंट पढ़, नहीं तो क्वेश्चन से लेके सर, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन या आंसर? से लेके पहला पॉइंट तक पढ़। कोएफिशिएंट इन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ क्वेश्चन एस। से लेके फर्स्ट पॉइंट पढ़ बोला मैंने। हाँ ठीक है। What are the necessary conditions of driving point function, a bracket, after cancelling common factor in P of S and Q of S? Answer. The necessary condition for driving point function with common factor P of S and Q of S cancelled are coefficient in expression polynomial of P of S and Q of S when n of S equal to P of S upon Q of S must be real and positive. पॉजिटिव, ओके। हो गया हाँ सर? स्वाति बुक्के। एक one. हाँ सेकंड पॉइंट पढ़ो। For imaginary or complex poles and zeros must be conjugate. Third point का हाँ रुक first point. जा फर्स्ट पॉइंट ना रुक जा। हाँ पायल चौधरी। हाँ Yes, थर्ड sir. पॉइंट पढ़ो। Yes, sir. Third का first, rear part of all poles and zero must be all poles and zeros must be zero or negative. Third में second, if real part is zero, then all poles or zero must be simple or distinct. डिस्टिंक्ट। Distinct. हाँ Fourth, ठीक है ठीक है। हाँ मनीषा Yes, sir. फोर्थ पॉइंट पढ़ो। The polynomial of P of S and Q of S should not have any term missing between highest and lowest degree term, with the exception that either all even or all odd term are missing. आइदर ऑल ए डबल एल हाँ sir. आइदर Very ऑल हाँ Either ऑल इवन और ऑल all odd are odd. missing. ओके। हाँ यशिका हेलो यशिका गुंडाने हेलो हाँ विक्की दिगोरे। हेलो सर। हाँ फिफ्थ पॉइंट पढ़। The degree P of S and Q of S may The have degree of the degree of of the degree of P of S and Q of S हाँ पढ़। may have a different have इतना हो गया सर, हाँ इतना हो गया इतना नहीं different है वो। आगे लिख the degree of P of S and Q of S may have a difference of may have a difference of one or no difference, one or no difference। हो गया सर। हाँ, पढ़ एक बार। The degree of P of S and Q of S may have a difference of one or no difference. No difference, okay। सूरज भगत हेलो सूरज भगत। हाँ सर। हाँ बोर्ड 6 पॉइंट पढ़। The terms of lowest degree in P of S and Q of S can be differ in degree by one or more. Or no more. One No and no more। ओके। सर ये पॉइंट फंक्शन क्या होता है सर? हाँ पॉइंट फंक्शन क्या होता है? ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन ये होता है। ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन ये बताता हूँ मैं मतलब आपको। हाँ ये बताता हूँ ना, ये अभी यही लिख लिया अभी आप सबने।
Yes. ओके, अब देखो एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे अभी, क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन क्या है ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की। ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन यानी ये एक ही पोर्ट में हम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन निकालते हैं, यानी इनपुट और आउटपुट। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। आपको सबको पता है कि ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन इज द आउटपुट बाय इनपुट, यानी ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन नहीं, ओनली फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। तो ये ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन क्या होता है? ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन यानी ये एक ही पोर्ट में ये आपको निकालना पड़ता है, उसमें ही आपका इनपुट और आउटपुट क्या है करके, वो होता है आपका ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। तो अपने को यहाँ पे उसकी नेसेसरी कंडीशन पूछी गई है। अपने को यहाँ पे उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन पहचानने की नेसेसरी कंडीशंस क्या है, यानी तभी हम उसको ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि जो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है, जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है उसको मैंने बोला एन ऑफ एस। क्या बोला? एन ऑफ एस। एन ऑफ आपको पता है कि क्या होता है? पी ऑफ एस बाय क्यू ऑफ एस, यानी ये जो एस बोले हम, ये क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। क्या है ये? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में है, तो ये जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं तो ये पूरा फंक्शन हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये जो न्यूमरेटर है ये क्या है? पी ऑफ एस। डिनोमिनेटर क्या है? क्यू ऑफ एस। न्यूमरेटर है पी ऑफ एस एंड डिनोमिनेटर है क्यू ऑफ एस। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इनके जो क्या रहेंगे? कॉमन फैक्टर रहेंगे। इनके जो कॉमन फैक्टर रहेंगे उसे हमें क्या करना है? कैंसिल करना है। यानी सपोज यहाँ पे s इंटू एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 5 होगा और डिवाइडेड बाय s इंटू एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 6 होगा। तो हमें जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन वाले जो आए हैं उसे हमें क्या करना है? कैंसिल करना है। उसे हमें क्या करना है? कैंसिल करना है, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं। सपोज यहाँ पे 3s हो गया, 3s स्क्वेयर प्लस 6s प्लस 15 ऐसा हुआ, और इधर 3s स्क्वेयर प्लस 12s प्लस 18 ऐसा रहा। तो यहां से कॉमन क्या निकलता है? 3 कॉमन निकल जाएगा। 3 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 5 अपॉन 3 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 6, है ना। ये कॉमन फैक्टर में क्या करना है? कैंसल करना है। सबसे पहला काम हमको ये करना है। तो इसलिए उसने बोला है आंसर में कि पहले हम क्या करेंगे? कैंसल करेंगे। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि आफ्टर कैंसलिंग दी कॉमन फैक्टर इन पी ऑफ एस एंड क्यू ऑफ एस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, हमें जो भी कॉमन फैक्टर आएंगे उसे क्या करना है? कैंसल करना है। उसे क्या करना है? कैंसल करना है। फैक्टर यानी आपका ये इस इन द फॉर्म ऑफ एस के टर्म में भी हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट के टर्म में भी हो सकता है। तो वो हमें कैंसल करने हैं। कॉमन जो फैक्टर रहेंगे वो हमें कैंसल करने हैं। तो इसलिए हमने पहला पॉइंट लिखा है कि पहला यानी ऊपर का पॉइंट लिखा है कि आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर इन पी ऑफ एस एंड क्यू ऑफ एस द नेसेसरी कंडीशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन विद कॉमन फैक्टर इन पी ऑफ एस एंड क्यू ऑफ एस आर कैंसल्ड। कैंसिल करने के बाद पहला पॉइंट क्या रहेगा? ठीक है, तो वो है पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट, द कोएफिशिएंट इन एक्सप्रेशन, कोएफिशिएंट इन एक्सप्रेशन ऑफ पी ऑफ एस एंड क्यू ऑफ एस। जो पहला पॉइंट है, जो हमारे कोएफिशिएंट है इसके, पी ऑफ एस के और क्यू ऑफ एस के, है ना। पी ऑफ एस के सपोज एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस 5 और इसके थे हमारे एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 6। ओके, ये क्या होने चाहिए? जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। ये जो कोएफिशिएंट्स है ये क्या होने चाहिए? रियल एंड पॉजिटिव होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? रियल एंड पॉजिटिव। जब ये रियल एंड पॉजिटिव होंगे उसके कोएफिशिएंट, तभी इसको बोलेंगे हम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे जो कोएफिशिएंट है इन एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल के,
इसके P of S एंड Q of S के मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव, मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। कैसे होने चाहिए? रियल एंड पॉजिटिव होने चाहिए। इमेजिनरी नहीं चलते और निगेटिव भी नहीं चलते, इमेजिनरी भी नहीं चलते और निगेटिव भी नहीं चलते। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, फॉर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स पोल्स एंड जीरो, और या इससे हम क्या निकालेंगे? कॉम्प्लेक्स पोल निकालेंगे। अब एक एक्सप्रेशन आता है इसको, इनके क्या पोल क्या निकलेंगे? कॉम्प्लेक्स निकलेंगे। तो इनके जब पोल्स इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स निकलेंगे तब पोल्स एंड जीरो मस्ट भी कैसे होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। वो कैसे होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए, कॉन्जुगेट होने चाहिए। यानी आपका जो इसके जो पोल ये आएंगे पोल्स एंड जीरोज, तो वो कैसे आने चाहिए? वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही आएंगे, कॉम्प्लेक्स ही आएंगे। तो लेकिन वो कैसे होने चाहिए? कॉन्जुगेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कॉन्जुगेट, यानी एक प्लस तो एक माइनस होने चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या बोलेंगे? ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। क्या बोलेंगे? ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखो, थर्ड पॉइंट में अब अपने पास क्या आ गए? रियल पार्ट आ गया। अपने पास क्या आ गया? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स, रियल पार्ट ऑफ ऑल पोल्स एंड जीरोज, जो हमारा रियल पार्ट रहेगा, रियल पार्ट जो रहेगा, क्योंकि इसमें कैसा है? रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट रहेगा, लेकिन जो रियल पार्ट रहेगा, रियल पार्ट के ऑल पोल्स और ऑल जीरो, रियल पार्ट के ऑल पोल्स एंड ऑल जीरो, ये कैसी होनी चाहिए? एक तो जीरो होनी चाहिए, नहीं तो निगेटिव होनी चाहिए। एक तो जीरो और निगेटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव जब होता है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, पॉजिटिव जब होते हैं तो सिस्टम क्या हो जाती है? अनस्टेबल। तो इसलिए हमको स्टेबल रहने के लिए कैसा चाहिए? जो रूट्स आएंगे, ये रूट्स आएंगे या पोल और जीरो आएंगे, वो एक तो जीरो होना चाहिए, नहीं तो निगेटिव होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ओके, तो ये आपका है थर्ड में का फर्स्ट पॉइंट। अब ये जीरो आया, जो हमारा जो पोल्स और जीरो क्या आया? इफ द रियल पार्ट इज जीरो, जब रियल पार्ट हमारा जीरो रहा, देन पोल्स और जीरो मस्ट बी सिंपल और डिस्टिंक्ट। जब हमारा रियल पार्ट कैसा है? जीरो है, इसको हम इक्वेट कर रहे हैं, तो हमारे कैसा रहेंगे? सिंपल रहेंगे, सिंपल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, है ना? जब हमारा रियल पार्ट क्या है? ये रियल पार्ट इज जीरो, देन उसके पोल और जीरो कैसे रहेंगे? सिंपल एंड डिस्टिंक्ट। सिंपल मींस उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगे, वो रियल रहेंगे, और डिस्टिंक्ट रहेंगे, यानी पॉइंट में नहीं रहे, पॉइंट में रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो डिस्टिंक्ट रहेंगे, एक ही पॉइंट पे रहेंगे। तो इसलिए उसने बोला है कि इफ रियल पार्ट इज जीरो, देन दैट पोल और जीरो मस्ट बी सिंपल और डिस्टिंक्ट, मस्ट बी सिंपल और डिस्टिंक्ट। देन फोर्थ पॉइंट, देन आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। क्या बोला? देखो अभी यहाँ पे, द पॉलिनोमियल P of S एंड Q of S, जो हमारे P of S एंड Q of S के पॉलिनोमियल रहेंगे, शुड नॉट हैव एनी टर्म मिसिंग बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री। उसमें हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा s स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है? यस वाली टर्म मिसिंग है, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर रहता है कैसा रहता है? s का रहता है s और s0 यानी कांस्टेंट, है ना? ऐसा ऑर्डर रहता है, s क्यूब ऐसा ऑर्डर रहता है ना, s क्यूब, s स्क्वायर, s और s0, ये क्या होता है? पोलिनोमियल। लेकिन ये क्या बोलता है कि P ऑफ S में और Q ऑफ S में एक भी टर्म ऐसी मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक भी टर्म ऐसी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसने बोला है द पॉलिनोमियल ऑफ P ऑफ S एंड Q ऑफ S शुड नॉट हैव एनी टर्म मिसिंग बिटवीन हाईएस्ट डिग्री एंड लोएस्ट डिग्री। ये इसकी हाईएस्ट डिग्री है s टू द पावर 3, और यहाँ पे कांस्टेंट यानी क्या होता है? s0 पावर 0, क्योंकि एनी पावर टू द 0 क्या होता है? 1। तो जो हाईएस्ट डिग्री और लोएस्ट डिग्री है, इन दोनों के बीच में एक भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए, यानी आपको पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम ये दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो s क्यूब, s स्क्वायर,
एस और एस टू द पावर 0, यानी एनी कांस्टेंट। तो ऐसी टर्म आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला है कि द पॉलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एस एंड क्यू ऑफ एस शुड नॉट हैव एनी टर्म मिसिंग बिटवीन हाईएस्ट डिग्री एंड लोएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री एंड लोएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है। मिसिंग तो नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें एक्सेप्शन आता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि ऑल आर ऑड दिखने चाहिए। सपोज एक कुछ टर्म नहीं है, कुछ टर्म नहीं है, तो कैसा होता है कि उस समय में आपको पूरे ऑड दिखने चाहिए, नहीं तो इवन दिखने चाहिए। नहीं तो एक तो ऑड, एक तो इवन। ऑड यानी कैसा, देखो एस क्यूब प्लस एस, एस क्यूब प्लस एस, इसका पावर क्या है 3 है और इसका पावर क्या है 1। ये दोनों नंबर क्या है, ऑड है। ये दोनों नंबर क्या है, ऑड है। और नहीं तो कैसे ऑल, ये आप ऑड है। और ऑल इवन का एग्जांपल क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2, एस स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे एस टू द पावर कितना है 0 और ये 2, तो ये क्या हो गया आपका ऑल आर इवन, ऑल आर इवन, ऑल आर इवन। तो इसके सामने आपको एस टू द पावर 4 भी आ सकता है, इसके सामने एस टू द पावर 5 भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया ऑल आर ऑड, और ये क्या हो गया ऑल आर इवन। तो ऐसा जब रहेगा, ऐसा जब रहेगा तभी उसको हम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट, हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। एक तो यहाँ पे कौन मिसिंग है, यहाँ पे ऑल आर इवन मिसिंग है, तो यहाँ पे ऑल आर, सॉरी यहाँ पे ऑल आर इवन मिसिंग है और यहाँ पे ऑल आर ऑड मिसिंग है। तो इसलिए उसने बोला था कि एक्सेप्शन दैट आइदर ऑल इवन और ऑल odd terms are missing, either all even terms or all odd term are missing। तो उसको उसी तभी उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या बोला इसने, द डिग्री ऑफ पी ऑफ एस एंड क्यू ऑफ एस, द डिग्री ऑफ पी ऑफ एस एंड क्यू ऑफ एस may have a difference of, may have a difference of one or no more difference, one or no more difference। यानी इसकी जो डिग्री है P of S और डिवाइड बाय Q of S। अब सपोज मैंने यहां पे लिखा S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 3 अपॉन S स्क्वायर प्लस 4S प्लस 5। ओके, इनकी जो डिग्री है, डिग्री यानी क्या, हाईएस्ट डिग्री, यानी हाई टू पावर, यानी जो पावर में रहता है उसको बोलते हैं हम डिग्री। ये डिग्री कितनी है 2, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, एक तो सेम होनी चाहिए, नहीं तो इसका एक का डिफरेंस होना चाहिए। यानी हम यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2S प्लस 3 अपॉन एस प्लस 5 ऐसा भी चलता अपने को। एस स्क्वायर यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिग्री का जो डिफरेंस है, ये कैसे चलता अपने को, एक का डिफरेंस चलता, एक का, या नहीं तो डिफरेंस नहीं होना। एस स्क्वायर भी चलता इधर, एस स्क्वायर चलता, नहीं तो इन दोनों का डिफरेंस होना। यहाँ पे ऊपर में भी आप एस लिख सकते हैं ओनली, और नीचे भी यहाँ पे स्क्वायर चलता, यानी डिफरेंस एक का चलता, ऊपर कम, नीचे ज्यादा, नीचे ज्यादा ऊपर कम, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कितना का चलेगा, सिर्फ एक, नहीं तो कुछ नहीं, एक नहीं तो कुछ नहीं, यही डिफरेंस चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट, ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। देन सिक्स्थ पॉइंट है आपका द टर्म ऑफ लोवेस्ट डिग्री, द टर्म ऑफ लोवेस्ट डिग्री इन P of S and Q of S can be differ degree by 1 or more। यानी इसका अभी यह पहले हमने क्या लिखा, हायर डिग्री देखा, अब देखेंगे लोअर डिग्री। लोअर डिग्री में वैसा ही, यानी जो अब यहाँ पे आपका S है, सपोज देखो S स्क्वायर प्लस 2S, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा S प्लस 2, इनका जो है डिग्री, यहाँ पे इसके 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये कितने का डिफरेंस हो गया 1 का। तो यहाँ पे भी क्या चलता, एक का डिफरेंस और कुछ भी नहीं, डिफरेंस कुछ भी नहीं चलता। यानी देखो S स्क्वायर प्लस 2S प्लस 5 अपॉन S प्लस 2 अपॉन S प्लस 2, इनकी लोएस्ट डिग्री कितनी है दोनों की
और यहाँ पे 5, इनकी लोएस्ट डिग्री कितनी है, x⁴0 है ना, ये लोएस्ट डिग्री है इसकी, तो दोनों का डिग्री सेम चलती, नहीं तो एक का डिफरेंस चाहिए, तो ये हो गया आपका नेसेसरी कंडीशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, नेसेसरी कंडीशन फॉर ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। समझा ये, समझे सबको? ठीक है, तो ये हो गया ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन। कल हम लिखेंगे किसके बारे में, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, नेसेसरी कंडीशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन, नेसेसरी कंडीशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे।